ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کی پرورش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا وطن عراق کا مشہور شہر دارالخلافہ بابل تھا۔ علاقہ صدوم کے باشندوں کی اصلاح کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس علاقے کے باشندوں کو ان کی شرکیہ باتوں سے روکا، لیکن انتہائی نافرمان قوم نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ناظرین اکرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور ان کی قوم کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں 12 جگہ پر ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہیں ان کی نشو و نما ہوئی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے سب سے پہلے تسلیم کرنے والے تھے، جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، پس ایمان لایا ابراہیم کے دین پر لوط، اور کہا ابراہیم نے ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ ناظرین اکرامی، آپ علیہ السلام کو علاقہ صدوم کے باشندوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس علاقے کے لوگوں کو دن رات دعوت دی، لیکن ان کی شرکیہ باتیں ختم نہ ہوئی، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے کو جھٹلایا۔ اس قوم میں بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قوم اتنی بے خوف اور گناہوں پر جری ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بڑی دلیری سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، اے لوط اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اس قوم کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اب ان کی اصلاح ناممکن ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آخر اللہ کے نبی کی تکذیب اور ان کو جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا، جس عذاب کے وہ طالب تھے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ خدا کا جب عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافروں سے ملی ہوئی تھی، وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے شام جاتے ہوئے عذاب سے تباہ شدہ اس بستی کے کھنڈر آج بھی لوگوں کو دعوت عبرت دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے، اس وقت بھی یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت ہو گئے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں خلق خدا کو واعظ و تبلیغ کریں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شرق اردن کے علاقے کی جانب صدوم اور عمورہ کو چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اردن کی وہ جانب جہاں بحر میت یا بحر لوط علیہ السلام واقع ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھی۔ پہلے یہ بستیاں تھی، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھے، اور پہلے یہ شہر اونچی جگہ پر آباد تھے، لیکن جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا، اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط علیہ السلام سے مشہور ہے۔ اس گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیوں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا زہریلا پانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کیا جس کا نام لواطت سے مشہور ہے، اور علل اعلان یہ کام کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پورے کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا، باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا تھا، واپس نہ دیتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت اور ان سے گزشتہ قوموں کے واقعات بھی انہیں سنائے، لیکن ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔
चुनांचे इरशाद बारी ताला हुआ, मगर उनकी कौम का जवाब इस बात के सवा न था कि उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। यानी ताना और मज़ाक से कहते हैं बड़े पाकबाज लोग हैं, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, उनको हमारे साथ क्या वास्ता। और सूरह अनकबूत में इरशाद बारी ताला है, क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और डाके डालते हो और अपने मजलिस में बुरा काम करते हो। बस उस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आओ। और सूरह शुअरा में है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया जब उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक मोतबर रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। मगर उन पर इस बात का कोई असर न हुआ, बल्कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकालने और संसार करने की धमकियां देने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबख्तो, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, वो खुदा ने जायज़ तरीके से तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए तुम्हारी रफ़ीका हयात बनाई हैं, इस बदफेली और बदअमली से बाज आ जाओ। मगर उन्होंने कहा कि तुम बड़े पाकबाज बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम तर कोशिशों का कुछ असर न हुआ और कौम गुस्से में आकर कहने लगी, ए लूत, तू अपनी नसीहतें खत्म कर, अगर हमारे इन आमाल से खुदा नाराज होता है तो तू जिस अजाब से हमें डराता है वो अजाब ला कर दिखा, तो बार बार हमें डराता रहता है। अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो फिर हमारा और तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए। जैसा कि इरशाद है, पस लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था, कहने लगे, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। इधर ये हो रहा था, उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 आदमी सामने खड़े हैं। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, इसलिए उनको अपने साथ घर ले आए और एक बछड़ा ज़बह किया और भूनकर उनके सामने पेश किया, जिस पर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे ये कोई दुश्मन है, दिल में कुछ परेशान हुए। जब मेहमानों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इज़्तिराब देखा तो हंस कर कहा, घबराए नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं, कौम लूत की तबाही के लिए सुदूम जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल की रिक्कत के साथ फरिश्तों से कहा, वहाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल हैं। जैसा कि इरशाद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, शहर सदूम में हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, हमको मालूम है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं वहाँ कौन है, हम उसके और उसके घर वालों को बचा लेंगे, मगर उसकी बीवी जो पीछे रह जाने वालों में होगी। फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर सदूम शहर पहुंचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान हुए। फरिश्ते नहायत खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन मेहमानों को देखकर सख्त घबराए, बदबख्त कौम के लोग मेरे इन मेहमानों के साथ कैसा सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसी गम में थे कि लोगों को पता चल गया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर दौड़ते हुए आए और मुतालबा करने लगे, उन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में कोई समझदार आदमी नहीं, इरशाद बारी ताला है, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं, तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में फितरी तरीके अमल को छोड़कर और हलाल तरीका औरतों को छोड़कर इस बदफेली में लगे हुए हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़े अफसोस से कहा, आज मेरे पास ताकत होती तो मैं तुमसे पूरा मुकाबला करता। नाज़रीन ग्रामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जहाँ ये फरमाया कि तुम तरीके हलाल को छोड़कर जो तुम्हारे घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं, तुम इस बदफेली में लगे हुए हो, तो इस बारे में उलमा का कहना है कि ये एक इश्काल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि ए बदबख्तो, तुम्हारे घरों में जो मेरी कौम की बेटियां हैं वो जायज़ तरीके से तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। ये मकसद कतन न था कि वो अपनी सल्बी पाकीज़ा लड़कियां उन मलून खबीसों को पेश फरमा रहे थे। इनके मेहमानों के बारे में हजरत लूत अलैहिस्सलाम सख्त परेशान थे और इसी परेशानी की हालत में ये कौम भी उनसे सादर हुआ। काश आज मेरे लिए तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या पनाह मिलती किसी जबरदस्त कुव्वत की। सूरह तहरीम में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र है और सूरह शुअरा में इरशाद है, बस हमने उसको और उसके घर वालों को बचा लिया, मगर एक बुढ़िया वो रहने वालों में रह गई, फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और हमने उन पर एक बारिश बरसाई। बस कैसी वो बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिनको डराया गया था। तौरात में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत सदूम से हिजरत करके ज़ौगर की बस्ती में चले गए जो सदूम से करीब थी। आफ्ताब निकलने के बाद जब उन्होंने सदूम की तरफ देखा तो वहाँ हलाकत बर्बादी के सिवा कुछ न था। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ज़गर को छोड़कर करीब एक पहाड़ी पर जा आबाद हो गए और अमनो अमान से वहाँ रहने लगे और वहीं पर उनका इंतकाल भी हुआ। कौम लूत की बर्बादियों की अगर मजीद बात करें तो बाज़ रिवायात में है कि कुफ़ार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पत्थर मारकर जख्मी कर दिया था और दरवाजा तोड़कर फरिश्तों तक पहुंच गए तो खुदा ने उनको अंधा कर दिया। फिर इन्होंने तौबा की तो बसारत वापस लौट आई, लेकिन फिर उन्होंने बुरा इरादा किया तो उनके बदन खुश्क हो गए। फिर उन्होंने तौबा की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की तो फिर ठीक हो गए और भागकर अपने घरों में चले गए और कहने लगे, लूत अलैहिस्सलाम के घर कोई जादूगर आए हुए हैं।
इसी तरह वो गफलत की नींद में थे कि सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके शहर के नीचे से अपना पर लगाकर शहर को आसमान की तरफ उठा लिया, फिर शहर को उल्ट दिया और दरिया से नीचा कर दिया और फिर पत्थरों की बारिश कर दी गई। आखिर अजाब का वक्त आ पहुंचा था। इब्तदा शब हुई तो फरिश्तों के इशारे पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर शहर सदूम से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी बीवी ने रफाकत से इनकार कर दिया और रास्ते से लौटकर सदूम वापस आ गई। आखिर सुबह हुई तो पहले एक हैबतनाक चीख हुई जिसने अहले सदूम को तहबाला कर दिया, फिर आबादी का तख्ता उठाकर उल्ट दिया गया, फिर पत्थरों की बारिश हुई और उनका निशान तक मिटा दिया। और वही हुआ जो गुज़श्ता कौमों के साथ उनकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से हो चुका था। और फरिश्तों ने यह भी कहा था कि जाते वक्त पीछे मुड़कर कोई न देखे, जैसा कि फरमान इलाही है, और ख्याल करो कि कोई पीछे मुड़कर न देखे। बाज रवायात में आया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो फौरन उसको एक पत्थर लगा और वो हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कौमे लूत बड़ी मस्ती में थी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, आपकी जान की कसम वो तो एक नशे में मस्त थे। बस सूरज निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस शहर को उल्ट पुल्ट कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। और सूरह हूद में भी ऐसा फरमाया, उनके लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, क्या सुबह करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को उलट पुलट कर दिया और उस पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, आपके रब के पास से निशान लगाए हुए, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर न थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने अपना राज बता दिया, जैसा कि फरमान रब्बी है। फरिश्तों ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तेरे रब की तरफ से भेजे हुए हैं, वो हरगिज आप तक पहुंच न सकेंगे। पत्थरों की बारिश के बारे में तफसीर इब्न कसीर में है कि उन पत्थरों पर कुदरती तौर पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिसका नाम जिस पत्थर पर लिखा हुआ था वो उसी पर आ गिरता था। वो मिसले तौक के थे जो सुर्खी में डूबे हुए थे। ये पत्थर उनके शहरों पर भी बरसे, जो लोग दूसरे देहातों वगैरह में गए हुए थे उन पर भी वहीं गिरे। उनमें से जो जहां था वो उस पत्थर के लगने से हलाक हुआ। कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई किसी से बातें कर रहा था। वहीं आसमान से पत्थर आया और उसे हलाक कर गया। गर्जे के उनमें से जमीन पर कोई न बचा। इनकी 4 बस्तियां थी और हर बस्ती में 1 लाख आदमियों की आबादी थी। एक रिवायत में है कि 3 बस्तियां थी। बड़ी बस्ती का नाम सदूम था। यहाँ कभी कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने जितने भी लोगों के किस्से और वाक़यात कुरान मजीद में आज हम तक पहुँचाए हैं, उनसे मकसद सिर्फ यही है कि हम उनसे नसीहत हासिल करें। लेकिन सोचने और फिक्र करने की बात तो ये है कि वो ऐसी कौन सी बुराई है जो पहली कौमों में थी और हम में नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें इस हाल में रखा हुआ है कि हम पर कोई अजाब नहीं आता और हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती। तो यकीनन ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए दुआएं हैं, जिनके बदले में आज अल्लाह ताला ने हमें सही और सलामत हर गुनाह के बावजूद हम पर पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।